cause of stress and cell death. You know, with the passage of the time, आप जैसे ब्रेन की एग्जांपल दें तो इसका साइज श्रिंक होता है, ब्लड सप्लाई विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है, तो गहराई कम होते जाते हैं और सल्काए बढ़ते जाते हैं, तो ब्रेन मैटर जो है ना वो कम होता है। तो एजिंग भी एक इसमें लिस्ट में शामिल है। तो अगर हम रिकॉल करें तो इसमें एम्ब्रोलॉजिकल या एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के बाद फिर ये एक्वायर्ड में बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल में रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, यानी बहुत से एजेंट्स, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हाइपर सेंसिटिविटी। सो there is a long list. If I ask you to tabulate the agents which can cause cell injury, then you will, मेरा ख्याल आप सफ़ों के सफ़े भर देंगे इसमें, मतलब a lot of things. Now the question arises that if a cell faces some stress, or there is some stress on cells, some agents which try to injure cell, so how cell reacts? Whether it immediately dies or it tries to adapt. तो ये क्वेश्चन है। तो it does not immediately die. Cells first try to adapt themselves to the new challenges and stresses. तो इस सारे इन चीज़ों को हम adaptations, because there are different ways by which cell can withstand, tolerate those stresses without dying. सेल की कोशिश होती है जिंदा रहे, तो वो अडेप्ट करता है। तो अडेप्ट भी बहुत सी किस्में होती है अडेप्टेशंस की। तो एक छोटा सा सब टॉपिक इसमें जो शुरू में हम स्टडी करते हैं वो है सेलुलर अडेप्टेशंस, यानी हाउ सेल्स अडेप्ट और try to face the stresses, to cope with the stresses which they have to face. तो ये जो 5 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, बल्कि 4 जो है ना पर्टिकुलरली ये बहुत इम्पोर्टेंट अडेप्टेशंस हैं। जो डिस्प्लेजिया है ये प्लस माइनस है। Most of your textbooks, they don't include dysplasia as a mean and method of cellular adaptations. So at least you should know or should be very clear about 4 types of adaptation. That is the hyperplasia, hypertrophy, atrophy, metaplasia, and dysplasia. And all these adaptations, they are a sort of reversible phenomena, reversible, because when the stress is gone, then the cell come back to the normal. So cell don't die. This is a reversible sort of injury. So injury can be 2 types. Reversible, after which the cell can come back to their normal status, and irreversible. Irreversible, when the cell cannot come back to the normal. Irreversible means death of the cell. Irreversible cell injury means death of the cell. Because when it cannot come back to the normal, definitely it is going to die. So if the stimulus is very severe or it is prolonged, the cell cannot cope with this stimulus by adaptations. यानी adaptations का जो एक हथियार है, वेपन है, एक मीन्स है सेल के पास, वो भी उसे ना बचा सके, इतना ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस हो या स्टिमुलस सीवियर हो, तो फिर they undergo irreversible injury and death. So you should be clear in your mind that when the cells, normal cells, they have to face
stresses, then the first thing is they try to adapt. They use adaptations, and that is hyperplasia, hypertrophy, atrophy, metaplasia. And if all these means and methods they fail, then the cell is undergoing irreversible injury. And you should be clear in your mind that all these adaptations, they are reversible. They are reversible processes. It means that a cell can come back to the normal status after undergoing all these adaptations. And when the situation is bad, when the stimulus is very strong or it is prolonged and cell cannot cope with it, adaptations fail, then it goes to irreversible injury, and irreversible injury means death. So briefly, this is a slide which shows you briefly that when cell has to face some stresses, what can happen? One line is adaptations. If the stress is not very severe, then the line is adaptations. But it is very severe, then it will go to the irreversible cell injury. So after adaptation, cell, it can go back to the normal. Okay, if adaptation is not possible, then what happens? There can be reversible cell injury. If again the stimulus is very severe, then they can go to the irreversible change or necrosis or cell death. Cell death, two phenomena, necrosis and apoptosis. There are two pathways by which cell dies, that is the necrosis or apoptosis. This we will study later on in detail. So the cell tries to adapt, and sometimes it goes to reversible cell injury. There are subcellular alterations, and this reversible cell injury, cell can go back to the normal. But if it is very severe, then it will go to the, when you cross the line of irreversibility, then the next thing is the cell death. Cell death either by necrosis or by apoptosis. So we study now adaptations one by one. Again, adaptations are reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity, or functions of cells in response to changes in their environment. So this is the definition of adaptations. When the cell has to face some environment, unfavorable environment, then adaptations occur, and they are reversible changes in the size of the cell, number of the cell, phenotype of the cell, metabolic activity, or functions of the cells. So whenever the cell has to face untoward, some unfavorable environment, unfavorable conditions, they adapt. Even cells must constantly adapt, even under normal conditions, when there is some change in the environment. So what are adaptations? They represent responses of cells to normal stimulation
which may be by hormones or endogenous chemical substances. If there is any stress, any stimulus, for example, by hormones problems, imbalances, or endogenous chemical substances, then cells adapts physiological adaptations. Take the example of the breast. So during lactation, the size of the breast increases. The number of the cells in the breast, they increase. It undergoes hyperplasia. Okay, now we study all these types one by one. We see what are these adaptations. So try to understand this point that adaptations can be physiological and they can be pathological. Physiological, as I told you, the example of the breast during lactation, or the example of uterus and breast during pregnancy. So they enlarge. This is a normal physiological phenomenon because after delivery, uterus and breast, they will, particularly uterus, come to the normal size. And after lactation, even breast also, the size of the breast comes to the normal. So these are the physiological adaptations. So dysplasia, again and again they write dysplasia, but your textbooks, they don't include it, and as a rule, बस में वो वही आवाज आ रही है, कुछ स्टूडेंट ऐड करने, वो टुन टुन की आवाज आती है. One minute, students. They want to, कुछ और आए हुए हैं? इस वक्त कितने हैं? सर ये जब फुल हो जाएगा ना, मतलब जब हम लेक्चर लेके हटा देंगे ना, तब नहीं होगा. अच्छा अच्छा, ये टुन टन का क्या मतलब होता है? कोई ऐड हो रहा है, आप ऐड करेंगी या? नहीं सर, ये खुद इधर ऐड होंगी. अच्छा, उसको मैं नेग्लेक्ट करूं? हैं, चलो ठीक है, आप स्लाइड पे. थैंक यू मैम. वो उसी स्लाइड पे. अच्छा, मैं चाहता हूँ ठीक है. कोई बच्चे को म्यूट ना करें, तो सब लेक्चर हैं. अच्छा, they can mute. स्टूडेंट प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड कि कोई बच्चा दूसरे को म्यूट ना करे और अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें और लेक्चर गौर से सुने. ठीक है? यस सर. ओके, थैंक यू. तो हम आते हैं वापस. टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस. 4 तो आपने कभी भी नहीं भूलनी ना. हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी एंड मेटाप्लेजिया. 5वां डिस्प्लेजिया है, वो प्लस माइनस है. कुछ अथॉरिटीज उसे शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते. एक्चुअली वो नियोप्लेजिया जब आप पढ़ेंगे फिर आपको डिस्प्लेजिया ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगा. तो ये 4 चीज़ें हैं ना, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी और मेटाप्लेजिया. ये चारों मिला के सेलुलर अडेप्टेशंस. अब ये थोड़ा सा इस स्केच में गौर करें. थोड़ा कंसेप्ट दिया गया है. एट्रॉफी में अगर देखें, नॉर्मल साइज से एट्रॉफी का में जब होती है तो सेल साइज डिक्रीज हो गया, और हाइपरट्रॉफी में सेल साइज की बात करो, इंक्रीज हो गया. और हाइपरप्लेजिया में देखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए हैं.
मल्टीप्लिकेशन होगी सेल की। अब गौर कीजिए कि मेटाप्लेजिया वाला सेल, इज इट द सेम एज नॉर्मल? नो, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट्रोफी इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, hypertrophy is increase in the size of the cell, hyperplasia is increase in number of cells. It means multiplication of the cells. Or metaplasia is replacement of one mature cell type with the other to withstand the pressure of the stress. So start with the hyperplasia. It is an increase in the number of the cells in an organ or tissue which may then have increased volume. तो ये एक स्ट्रेस को कोप करने का या उसको फाइट करने का और अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स की मल्टीप्लिकेशन। सो कोई स्ट्रेस है जिसको सामना है टिश्यू को, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स के जरिए सेल का नंबर बढ़ जाता है। ये देखो एंडोमेट्रियम है, इसमें जब हार्मोनल स्ट्रेसेस आती हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ के ये ग्रॉस दिखाया गया है। ये आपको जो लब्यूल्स लैबुलेटेड ये कट सेक्शन है यूट्रस का, तो ये एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि आप 4th ईयर में बड़े अच्छे तरीके से जब आप फीमेल ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छी तरह से ऐसे समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि बिकॉज ऑफ द हार्मोनल स्ट्रेस ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स हुई और उसकी वजह से लैबुलेटेड हो गया है। ये म्यूकोसा बल्जिंग सा आपको नजर आ रहा है, बल्ज है ग्लोबुलर। ये जो एरो है उसको आप उसके करीब करीब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से ये बल्जिंग सी हो गई है इसमें। ये ग्रॉसली है, माइक्रोस्कोपिक भी पिक्चर होती है वो अलग से है। अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि हाइपरप्लेजिया फिजियोलॉजिकल भी होता है पैथोलॉजिकल, ये तो ठीक है। आप फिजियोलॉजिकल में कौन कौन से हो सकते हैं? हार्मोनल सबसे इम्पोर्टेंट है। और हार्मोनल कब कब, जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में, फिर लैक्टेशन में, और इसी तरह मेल्स में, ओल्ड एज में प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है मेल में। तो ये सारे हार्मोन हैं, मतलब प्रोस्टेट का ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंड्रोजन्स, ये उसका कॉज होता है। और इधर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का खेल है, सब आप पढ़ के आ गए कि ईस्ट्रोजन जो है ना उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की। और चाहे यूट्रस हो चाहे ब्रेस्ट हो, उनकी एपिथेलियम के मल्टीप्लिकेशन सेल्स की होती है और हाइपरप्लेजिया होता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में होता है। तो जो आखिरी हिस्सा है उसमें वो पढ़ना, मल्टी लेयरिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की, और जब 28th डे आता है तो फिर वो ब्लीडिंग होती है, सारे सेल डिज़ोल्व हो जाते हैं, फिर वो नॉर्मल अपने लेयर्स पे आ जाती है। फिर उसके बाद 14 डे से फिर एस्ट्रोजन के इफेक्ट से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो ये हर महीने एक साइकिल चलता है। और जब प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर मुसलसल हार्मोन निकल रहे होते हैं वेरियन, और वो मतलब एस्ट्रोजन से बढ़ा रहे होते हैं, और जब तक प्रोजेस्टेरोन से चेक ना करें तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसी तरह प्रोस्टेट एंड्रोजेंस, मेल सेक्स हार्मोन्स, उसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है।
तो प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया हो गया। तो दिस आर द फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, हार्मोन बॉडी के अंदर मौजूद हैं नॉर्मली, और वो मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स बढ़ जाती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के। एक चीज़ है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। उसकी एग्जांपल है कि मसलन किसी आदमी का खुदा ना खास्ता कोई एक लीवर का लोब डैमेज हो जाए या किसी डिजीज से मुतासर हो जाए, या रोड साइड, सपोज रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, उसका लीवर जो है ना वो डैमेज हो गया, तो सर्जन ने उसे सर्जरी करके आधे से ज़्यादा लीवर काट दिया, तो बाकी जो बच गया उसे वो फिर कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया वहाँ होगा। इट मीन्स के वो अपना साइज को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स फौरन स्टार्ट हो जाती है, और वो सेल वो लिवर का जो साइज है वो नॉर्मल होने की कोशिश करता है, यानी साइज बड़ा होने लग जाता है। तो इसे कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अगर किसी ऑर्गन का कोई पार्ट रिमूव कर दे तो देन दिस कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया स्टार्ट्स, और उसकी नेचुरल सी वजह यह है कि चूँकि अब वो काम करने वाला हिस्सा छोटा रह गया, अब उधर से स्ट्रेस आ रहा है, उसमें लिवर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो इस वजह से वो स्टिमुलस आते हैं और मल्टीप्लिकेशन होती चली जाती है। तो रीजनरेशन ऑफ द लिवर फॉलोइंग पार्शियल हेपेटेक्टमी, रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेजन्स, इवन आप देख लें कि हर वक्त हम हाथ धोते हैं तो मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे ज़ाय हो रहे होते हैं, तो वो फिर रीजनरेशन चलती रहती है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो फॉलोइंग नेफ्रेक्टमी, अगर एक किडनी का निकाल दिया जाए या एक किडनी का एक हिस्सा भी निकाल दिया जाए तो देयर इज हाइपरप्लेजिया ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द अदर। एक किडनी निकाल दे, दूसरा किडनी का साइज बढ़ जाएगा, दैट इज द हाइपरप्लेजिया ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द अदर किडनी। तो एक तो हार्मोनल हो गया और एक कंपनसेटरी, ये दो फिनोमेना है हाइपरप्लेजिया में। अब देखना ये कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है। नॉर्मल जो है ना तो फिजियोलॉजिकल साइकिल है, प्रेगनेंसी का हो गया, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, वो इंक्रीज हुआ ना, फिर नॉर्मल हो गया, लेवल हार्मोन के खुद ही बढ़े और फिर कम हो गए, चलता रहता है सिलसिला। लेकिन अगर कोई किसी वजह से एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स हो जाए और ग्रोथ फैक्टर्स, तो क्या होगा, अब जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा तो वो फिर नॉर्मल नहीं होगा, वो चूंकि ये जो स्टिमुलस है ये वापस नहीं जाता, तो वो मल्टी लेयरिंग और ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इस तरह के पेशेंट को प्रॉब्लम रहेंगे। इसी तरह वुंड जब हो जाए, कोई कट लग जाए तो ग्रेनुलेशन टिश्यू पैदा होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, एंड ये आप जो इन्फ्लेमेशन जब पढ़ेंगे, हीलिंग एंड रिपेयर पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, तो फिर आपको बताया जाएगा कि वुंड हीलिंग कैसे होती है। तो उसमें भी यही है कि जो उसके टिश्यू सेल हैं, मसलन एपिथेलियल सेल्स और मसल फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। वो डिपेंड ऑन डिफरेंट सेल्स, दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू प्रोलिफरेट। अब एक चीज़ है स्किन वार्ट्स फ्रॉम हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बाज़ औक़ात स्किन पे प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं, वार्ट्स उसे कहते हैं, डिजीज है, ये वायरस की वजह से है, वो स्टिमुलस वायरस है और उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होती है। तो वार्ट्स जो है ना, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो एक तो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती रहती है, यानी मेंसेस के दरमियान में भी, यानी एनी टाइम या हर वक्त, तो पेशेंट अनीमिक होता चला जाता है, ब्लड लॉस होता चला जाता है। इस तरह वुंड हीलिंग, इसको हम एक्सीडेंटल, यानी कट लग जाए कोई, ये सर्जिकल
कट हो तो उसके बाद जो प्रोलिफरेशन होती है। अब ये स्किन की एग्जांपल है कि उसमें वायरस की वजह से पेपिलोमा पैदा हुआ। पेपिलोमा क्या, फिंगर लाइक किसी भी प्रोजेक्शन को हम पेपिलोमा कहते हैं। तो पेपिलोमा वायरस की वजह से वार्ड्स या एक प्रोजेक्शंस स्किन के ऊपर पैदा हो जाना। तो इसी तरह स्यूडोकार्सिनोमेटस हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्किन, कार्सिनोमा नहीं होता, बस हाइपरप्लेजिया होता है, तो इसलिए सूडो, बट लुक्स के शायद कहीं कैंसर ना हो। अब देखना यह है कि व्हाट मेक्स सेल्स टू प्रोलिफरेट, टू मल्टीप्लाई, यानी मैकेनिज्म क्या है मेटाप्लेजिया का। ये कोई सेल की फिनोटाइप चेंज नहीं हो जाती, उसकी कोई टाइप नहीं बदल जाती, उसी टाइप की जो सेल्स हैं, जैसे कि हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, वो उनकी मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलस उन्हें मिलता है, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे ड्यू टू कट सेक्शन हो, चाहे ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन, कोई भी हो। अभी आपने एग्जांपल्स देखी, तो उसकी वजह से द सेम टाइप ऑफ सेल्स, दे उनकी मल्टी लेयरिंग होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 से 2, 2 से 4। तो उसमें कोई नया सेल नहीं कहीं से आ रहा, उसमें वही सेल्स जिनको स्टिमुलस मिला है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए ग्रोथ फैक्टर्स स्टिमुलेट होते हैं उसकी वजह से, तो वो मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें कि हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ सेल्स, उनकी स्टिमुलस की वजह से मल्टीप्लिकेशन हो जाए और वो बहुत ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ जाए, और उसी वजह से सेल का टिश्यू और ऑर्गन साइज वो भी बढ़ जाए, तो इसे हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ cells by the other. Sorry. हाइपरप्लेजिया के बाद हम एक मिनट आइए, दूसरे नंबर पे हाइपरट्रॉफी है, फिर तीसरे नंबर पे हम जाएंगे एट्रोफी पे, और चौथे पे मेटाप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ आप सही है, वो गड़बड़ हो रही थी। Hypertrophy, second adaptation. First one was the hyperplasia. What is hyperplasia? Increase in number of the cells. So what is hypertrophy? That is increase in the size of the cell, not the number. कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ सकता होता, तो उसमें फिर साइज ऑफ द सेल बढ़ के वो जो स्ट्रेस है उसको कोप करता है। अब इसकी मिसाल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ये यूट्रस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, ये आप जहन में रख लें कि यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरप्लेजिया भी हो रहा होता है और हाइपरट्रॉफी भी, बिकॉज साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोनों हो रहे होते हैं। साइज ऑफ द सेल इज आल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दैट इसमें दोनों फिनोमेना इकट्ठे होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्वॉल्व बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, यानी नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं और साइज ऑफ द सेल भी बढ़ रहा है। हाइपरट्रॉफी इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, और नंबर ऑफ द सेल जो बढ़ता है वो हाइपरप्लेजिया है, लेकिन इसमें दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, यानी बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो पैथोलॉजिकल कॉजेज में इंक्रीज वर्कलोड, हार्मोनल स्टिमुलेशन, ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन, मसलन हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। अब किसी को हाइपरटेंशन है या वेल्वुलर डिफेक्ट है जिसकी वजह से हार्ट को कंट्रैक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, चूँकि ज़्यादा कंट्रैक्शन के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो मुसलसल एक स्टिमुलस है कि ज़्यादा, यानी ब्लड पूरा नहीं आ रहा तो कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन देयर इज अ हाइपरट्रॉफी,
जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, यानी तो वो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स। उसमें नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। उसकी वजह से हार्ट इनलार्जमेंट हो जाती है। हार्ट अपने साइज से 1.5 गुना 2 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो दिस इज पैथोलॉजिकल। क्या होता है कि वर्कलोड बढ़ गया, वेदर इट इज हाइपरटेंशन, वेदर इट इज वेल्वुलर डिफेक्ट। जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा हार्ट, तो उसके ऊपर दबाव है, तो उसको कोप करने के लिए वो फिर साइज ऑफ द सेल, मायोकार्डियल सेल्स वो बढ़ने लग जाता है। तो मायोकार्डियम जो है ना वो बड़ी थिक होने लग जाती है, बड़ी हो जाती है सेल साइज, मतलब हार्ट का साइज ओवरऑल बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिस इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट। अब यहाँ देखिए, काश इसके साथ नॉर्मल हार्ट का भी कट सेक्शन होता तो बड़े आराम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ट्राई टू सी द डायमीटर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। इसकी वॉल देखो कितनी थिक हुई पड़ी है। तो एक्चुअली अगेन आई वुड से कि ये एक पिक्चर देख के कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, साथ इसके नॉर्मल होनी चाहिए। तो अगर मुझे कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली तो नॉर्मल और उसके साथ हाइपरट्रॉफी दोनों। लेकिन ये जो थिकनिंग है, दिस स्ट्राइक हो रही है कि इट इज़ एबनॉर्मल थिकनिंग है, ये नॉर्मल नहीं लग रही। यहाँ अच्छा दिखाया, एक देखें इसमें ए बी सी 3 स्लाइडें। ए स्लाइड पे गौर करें, ये यूट्रस हैं 2, एक बिफोर प्रेगनेंसी एक आफ्टर प्रेगनेंसी। अब देखें कितना साइज का फर्क पड़ गया है, 4-5 गुना से भी ज्यादा मेरा ख्याल है बढ़ गई है। दिस इज स्मॉल यूट्रस विच इज नॉर्मल, विच इज बिफोर प्रेगनेंसी, और दूसरी है जब वो प्रेग्नेंट है। तो राइट साइड पे बिफोर प्रेगनेंसी है और लेफ्ट पे ग्रेविड यूट्रस, यानी प्रेग्नेंट जब होती खातून तो उसकी। अब इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर पे गौर करें, बी और सी पे गौर करें। बी में आपको नॉर्मल यूट्रस की जो फाइबर्स हैं, मायोमीट्रियम के जो फाइबर है वो दिखाए गए हैं। अब इनका कंपेयर आप करें, उसी उसमें है, ये कोई ये नहीं दूसरे वाली की पावर चेंज नहीं हुई, उसी माइक्रोस्कोप पावर पे जब हम ग्रेविड यूट्रस को लगाते हैं तो आप देखें कितने थिक हो गए हैं वो मसल फाइबर, देखें आप। तो कंपेयर करें बी के मसल फाइबर्स और पिक्चर जो सी है, एक्सट्रीम राइट मेरे और आपके, तो उसमें बहुत फर्क नज़र आ रहा है कि जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक हो गए हैं, कई गुना थिक हो गए हैं। आप गौर करें अगर तो दिस इज इंक्रीज इन साइज। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो मल्टी लेयरिंग भी है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ दिस सेल्स भी होता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी देखें क्लियर नज़र आ रही है। साइज, उसके कट सेक्शन पे डायमीटर देखें, मायोमीट्रियल के जो फाइबर्स हैं, मायोमीट्रियम, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका ये मतलब है कि although hypertrophy and hyperplasia are two distinct processes, two different processes, but sometimes they both occur together because उनका ट्रिगर जो है, उनका स्टिमुलस है वो सेम होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, उसमें क्या ट्रिगर है, हार्मोन लेवल जब बढ़ते हैं, तो वो हाइपरप्लेजिया भी वही कर रहे हैं और हाइपरट्रॉफी भी वही कर रहे हैं।
ये मेरा ख्याल है लास्ट एक स्लाइड देख लेते हैं और यहीं पे फिर लेक्चर छोड़ देंगे, तो बाकी फिर बातें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। हमने अभी बात की थी कि अभी हमने देखा था कि हार्ट साइज इंक्रीज हो गया, उसमें हमने उसकी कॉजेज देखी थी कि उस पर वर्कलोड बढ़ गया, और वर्कलोड में हाइपरटेंशन, वेल्वुलर डिफेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मायोकार्डियल फाइबर है वो इंक्रीज जो है ना साइज उसका या उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों हो जाती है, तो ये मैकेनिज्म समझाया गया। अगर आप गौर करें, ये जो सामने आपके है ये सेल है ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये मायोकार्डियल सेल एक दिखाया गया, उसके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर हैं, 3 रिसेप्टर है। एक पे लिखा हुआ है मैकेनिकल सेंसर, मैकेनिकल स्ट्रेच रिसेप्टर है। दूसरे पे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स, एगोनिस्ट दिखाए गए हैं जैसे कि अल्फा एड्रीनर्जिक हार्मोन्स और एंजियोटेंसिन। और तीसरे पे दिखाया गया ग्रोथ फैक्टर्स का रिसेप्टर है। तो अगर ग्रोथ फैक्टर आके इस पे अटैच होगा, जैसे ग्रीन में बॉल लाइक आपको दिखाया गया, तो जब हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, मायोकार्डियल फाइबर इंक्रीज इन साइज होता है, तो उसका ये मैकेनिज्म समझाया गया है कि इंक्रीज वर्कलोड होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर काम आएंगे। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स या एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स या ग्रोथ फैक्टर, ये 3 जो है ना स्टिमुलाई हैं, और ये फिर क्या करेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स GATF4, NF80, MEF2, ये आपकी बुक पिक्चर है, रॉबिन में दी हुई है, आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हाइपरट्रॉफी के ऊपर अगर कोई नोट आपको मिलता है तो या हाइपरट्रॉफी या फिर मेटाप्लेजिया पे ज़्यादा मिलता है। ये आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट हाउ the size of the heart increases due to increase in workload। तो ये उसके बाद ये ग्रोथ फैक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, सिंथेसिस ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बढ़ गई, मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ गई, वर्कलोड कम हो गया, इधर मैकेनिकल परफॉर्मेंस। तो ये एक मल्टी फैक्टर फिनोमेना है जो हाइपरट्रॉफी होती है। बायोकेमिकल मैकेनिज्म सारे इसमें दिखाए गए हैं और सिग्नल पाथवेज दिखाए गए हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। पूछे कि हाउ हाइपरट्रॉफी अकर्स इन हार्ट और मायोकार्डियम। ओके, तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह सी यू। ये 9:50 तक होता है ना? ओके, आप हाजिरी वगैरह देख लें। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।